at home, but there are some people actually working on the field, and that's what the Prime Minister said, that social distancing is quite important. But in spite of this tough time, we have seen that some warriors, the Corona warriors, are actually on field for us so that we can live life happily and safe. We have actually reached to the Jawaharlal Nehru Port Trust. So this is the busiest port in the country right now, in the big port that we have. And still the operations during this lockdown in all year. Right now we have it as the chairman of the JNPT. So first of all, talking about the operations at the JNPT, we have seen here that complete lockdown in the country. In spite of this, there are some warriors like you actually working on field. There were a few days of confusion, especially because a container port requires the support of a lot of stakeholders, which includes the transporters on road, the rail operators, the container freight stations, the custom agents, and many more such stakeholders. But after that, we have managed to bring them all together, and we did almost about 70% of our regular business. And we have calls for the next 15 or 18 days, which are almost like normal business. Most of the private port at this point in time have actually a force majeure. What's the reason behind it that the JNPT is working like that? Government of India has said that we can declare a force majeure. The force majeure, however, should not mean that the port shuts shop. Basically, it means that it has been declared as an essential service and we must carry on with work. However, the liability for terminal operators, all other stakeholders will definitely be treated as a force majeure. As far as port activities is concerned, it's quite a labor-intensive sector that we have seen. You need a lot of manpower for it. And right now, looking at these operations here, it seems that most of the people are not at the workplace here. So how actually you are managing this entire workplace? हमारे को शुरू में ड्राइवर्स और लेबर्स का प्रॉब्लम बहुत आया. बहुत से लोग जो छोड़ के भी चले गए, जो दूसरे स्टेट से आए हुए थे. परंतु उसके बाद हमने न केवल उनकी सेफ्टी की व्यवस्था की, बट उनके यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था भी की. जो ग्राम पंचायत जिनको एक प्रकार का एप्रीहेंशन था कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो हमारे गांव में वापस ना आए, तो उनके भी पोर्ट पे व्यवस्था की गई है. और साथ ही साथ सबको पूरी तरह से सेफ्टी गियर, सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे यहाँ पे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे एकत्रित नहीं होने दिया जाता. और काम करते हुए पूरी तरह जो सेफ्टी का इक्विपमेंट है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, उनकी पूरी तरह से उनको दिया गया है. इसके साथ ही साथ नियर बाय विलेजेस और हमारे टर्मिनल्स में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हाथ में लिया, जिसमें कि डिसइंफेक्टेंट से फवारनी की गई है, सबको सैनिटाइजर दिए गए हैं, सबको उसके बारे में एजुकेशन दिया गया है. से हम बात करें कंट्रीज की, तो कौन से ऐसे जहाजों को आप जो है पहली जो है फुर्सत में करें कि आप अनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम आपने किया? कौन से गाइडलाइंस आपने आते हुए? इसमें क्लियर है कि एसेंशियल गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस है. तो जो रीफर कंटेनर्स रहते हैं, जो एक ही टेम्परेचर पे चलते हैं, मतलब मोस्टली फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उससे भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन है, ऑयल है, एडिबल ऑयल्स हैं, ये सब जो है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है. जो शिप्स बेसिकली इन्फेक्टेड कंट्रीज से जो आ रही है, जैसे चाइना की बात करें, फिर अदर कंट्रीज की बात करें, तो ऐसे में पोर्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से ध्यान रख रहा है कि वहां से आने वाले शिप्स में या फिर किस प्रकार से जो है उनको डिस्ट्रिब्यूट किया जाए या फिर उनको पोर्ट पे लाया जाए? केंद्र शासन ने इसके बारे में एक बहुत क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, एक प्रोटोकॉल है, जिसके हिसाब से 14 दिन जो है वो शिप को एंकरेज में रखा जाता है अगर वो विशिष्ट कंट्री से आई हुई हैं, और वो 14 दिन होने के बाद ही वो शोर को टच करती हैं. और उसके बाद जो है बहुत दिन पहले से ही सरकार ने उसमें से आने वाले क्रू को वो यहाँ लैंड नहीं करेंगे, इस तरह का जो है बैन. और हमारे लोग जब उस पे शिप पे जाते हैं तो वो पूरी तरह से इक्विपमेंट, जो बॉडी सूट्स हैं और बाकी पूरी जो भी एहतियात बरतनी है वो. इसी सवाल पे आने वाला था, चूंकि काम यहाँ पर आपने कहा कि 70-80% कैपेसिटी में इस वक्त काम चल रहा है, तो ऐसे में जो लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पर, उस पर किस प्रकार से जो है एक अपने रखा हुआ कि जो गाइडलाइंस WHO के द्वारा दी गई वो भी यहाँ पर पारित की जाए, और साथ ही साथ काम को भी डिस्टर्बेंस ना हो, काम को भी इंटरेंस ना हो? जी, जैसे शुरू में जो है बाहर से आने वाले लोग जब तक अलाउड थे तब उनको यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया, और हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों फैसिलिटीज तैयार की हैं. और अब मात्र जब से गवर्नमेंट ने उस चीज पे प्रोहिबिशन ले आए, मतलब बाहर का क्रू जो है अब यहाँ नहीं उतरता है, तो जो लास्ट लोग भी हमारे यहाँ क्वारंटाइन में थे वो 5 दिन पहले से जा चुके हैं.
तो अब हमारे पास बाहर के देश का कोई भी आदमी क्वारंटाइन में नहीं है। और उसके अलावा आगे की परिस्थिति के लिए ये हमारे पास अपना हॉस्पिटल है, हमने उस हॉस्पिटल में पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। एक अलग से कोविड हॉस्पिटल के लिए भी व्यवस्था अलग बिल्डिंग में करने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। क्योंकि संकट अभी इस वक्त हम कह रहे हैं कि शासन का बरकरार है, कब तक, हालांकि जिस प्रकार से ये पूरा लॉकडाउन चलेगा, तो ऐसे में भविष्य वाले जेएनपीटी ने किस प्रकार से प्रावधान कुछ किए हुए, ट्रेड भी हिंडर ना हो, साथ ही साथ जो है सावधानी बरती जाए। देखिए, दो लेवल पे ये बात है। एक है कि अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, पर हमने ये तैयारी जरूर रखी है कि एक कंटिजेंसी अप्रोच तैयार रहे। जैसे हमने कहा कि आज के दिन में अगर हमारे पोर्ट से इवैक्यूएशन आगे बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि फैक्ट्री शुरू ही नहीं हुई। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, वहां से ना एक्सपोर्ट आ रहे हैं, और अगर यहाँ वाला जो इम्पोर्ट आया है वो लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पोर्ट में इतनी जगह है, और जो हम रिलेटेड जगहों पे हमने कस्टम से उसको नोटिफाई भी करा लिया है कि हम उसको 2 से 3 महीने तक जो है आगे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा था यहाँ पर कि पोर्ट एक्टिविटीज जो है इस वक्त तो फिलहाल 70% इस प्रावधान पे चल रही है, लेकिन ऐसे में जेएनपीटी ये भी ध्यान रख रहा है कि अगल बगल का जो एरिया है वो भी सैनिटाइज हो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ गांव भी है, यहाँ पे सटे हुए गांव भी है। ऐसे में उन पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए? 12 ऐसे गांव हैं जिनको हम पीएपी विलेजेस भी कहते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल वहां से थे। तो सब गांवों में हमने पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया है। वहां पे रेगुलर डिसइंफेक्शन कार्यक्रम जो है हमारे मार्फत किया जा रहा है। ये भी सवाल है कि आखिर किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, सप्लाईज कैसे आएंगे बाहर के देश से, मेडिकल सप्लाईज कैसे आएंगे, फूड ग्रेन कैसे आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोग? मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि पिछले 10 या 15 दिन से अभी हम इस स्थिति में हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो रेगुलराइज हो गया है। अभी जो फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम मूवमेंट की थी, अब वो लॉकडाउन में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्वाभाविक भी था। तो पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन, सबकी मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल प्रिंसिपल सेट किए, जो ऑर्डर्स निकाले, उसके आधार पर ये मूवमेंट को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरह से प्लान बी, प्लान सी भी तैयार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आती है कि जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट में एब्जॉर्ब करना पड़े कुछ देर के लिए, या हमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन से आगे इवैक्यूएशन की जगह कुछ और गोडाउन या वेयर हाउसेस को यूज करना पड़े, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंटेनर्स आते हैं, यहाँ पर माल की डिवाइड होती है, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेस में इस वक्त जो है जेएनपीटी का तकरीबन 70 से 80% कार्य जेएनपीटी का आज भी यहाँ पर चल रहा है। और जिस प्रकार से बात करें सप्लाईज की, वो किसी ना हो, इस पर भी जो है जेएनपीटी ध्यान दे रहा है। लेकिन ये सब काम करते वक्त जिस प्रकार से प्रावधान है, WHO में मानदंड जो लिखे गए, उनके अनुसार जेएनपीटी इस वक्त कार्यरत है और देश की सेवा के लिए समर्पित है।